5-7 मिनट कुछ हम बात कर लें उसके साथ, तो शायद आपको कुछ अंदाजा मिले कि उसने क्या किया और कैसे पढ़ा और हमने क्या करना है। आप में से कितने लोग ने एम्स का एग्जाम लिखा था? अभी एम्स का एग्जाम दिया था? तो क्या इसने कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहते? अभी क्वेश्चन सब्जेक्ट वाला बात नहीं, तो पहले हम उसको वही कि उसने कैसे प्रिपेयर किया, किस सब्जेक्ट्स को कैसे उसने फोकस किया। तो लेट अस हियर इट राइट फ्रॉम हर कि उसने कैसे पढ़ा और वो कैसे रैंक 1 तक पहुंच गई। वन इज अ बिग थिंग, मतलब आप मान के चलो। एंड मैं चाहता हूँ कि आप उसको देख के एक इंस्पिरेशन लो कि अगले साल आप में से कोई यहाँ पे हो रैंक 1 के साथ। लेट अस सी। तो ही ना। Hi everyone, and I would just like to say that the most important thing is that never give up. It's not कि एक बार में नहीं हुआ, so you think that AIMS या All India में good rank or PGI is not meant for you. सिर्फ होगा तो मतलब ऐसे कुछ compromise करना पड़ेगा. It's not that. I have also failed many times, but the key is that you have to rise each time you fall. And only then can you reach the top, because it's all a part and parcel of the game. And since we all have opted for this line, so we have given ourselves in. So giving up to option hi nahi hai. So and secondly, I have done foundation course here in pre-final year, and class notes are very important. All teachers here are very helpful, and sir ka jo radiology ka book hai, that's also very good. Each time you read it, you feel there's something new, and every line is very important. Sir ne kuch har cheez hi itni important hai usme that everything has to be remembered. And basically that you have to mainly concentrate on final year subjects and second crop subjects, because ye dono crops to they are in bulk in each paper. And then short subjects are also equally important for state PGs, and for PGI also short subjects are important. Another thing is कि जो what I would like to feel for AIMS is that see 100% nobody can do. So don't go for the less common things. Don't go for those 20% of the things which nobody would know. Just say every year you have some new question on FDA approved drugs, or many questions AIMS has, all journal based. It's not humanly possible for us to remember all those things, but important things you should know first. First things first. So if you know all that, so it's not at all difficult. So I don't want that anybody should ever feel ki it's impossible to crack an exam, or especially AIMS ki it's very difficult. ऐसा कुछ नहीं है. It's just some years back even I was sitting here, that time I had never thought that I'll be standing here someday, but today I am, because just because of this, that don't give up. Perseverance is very important, patience is important, and that's it. Rest just continue studying वही normal books जो पढ़ते हैं. अच्छा, मैं कुछ एकदम प्रिसाइज क्वेश्चंस पूछता हूँ कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे इस बार में एम्स में? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से रैंक 1 आता है? I had attempted 188 questions, and जो छोड़े थे the 12 questions I had left, those were those questions like बिल्कुल जिनके बारे में आइडिया नहीं था, like not at all, कुछ सुना नहीं था, ना options ना question, those I totally left. ये ना मैंने पिछले कई साल में हर बार जब मैं एम्स रैंकर के साथ बात करता हूँ, यूजुअली मैंने देखा है कि एम्स रैंक जो टॉप 50 होते हैं यूजुअली 185 प्लस अटेम्प्ट किए होते हैं. मतलब 185 एक गोल्डन नंबर माना जा सकता है एम्स के लिए कि 185 प्लस अटेम्प्ट के बाद रैंक आ रहा है. लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मुझे कुछ भी नहीं पता मैंने 185 लगा दिया, ऐसा नहीं. लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट्स जब 185 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनका रैंक ज़्यादा बेटर आ रहा है. तो ये अटेम्प्ट रेशियो को भी देखना ज़रूरी है इसके लिए. अच्छा, हैरिसन पढ़ी थी मैंने अपने अंडर ग्रेजुएशन ईयर में कि नहीं पढ़ी थी? Yes sir, I did in pre-final. पूरा पढ़ा था पूरा? ये क्लास नोट्स के साथ में हमने वो लीडिंग क्वेश्चन थे या हमने सिस्टमेटिक वाला वो पढ़ा था? कैसे सिस्टमिक पार्ट 2 हैरिसन तो ऑलमोस्ट क्लास नोट्स के साथ साथ इम्पोर्टेंट पढ़ा था, बिकॉज व्हाट वी आर टॉट हियर आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. तो यहाँ पे यूजलेस थिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते हैं. तो
whatever is taught here, you go back and read from Harrison once. ऐसा लगेगा कि एक बार पढ़ के तो हैरिसन से कुछ भी याद नहीं होगा, but somewhere it's registered in your mind. So important topics have to be read from Harrison. अच्छा, मैंने इसमें ऐड करूँगा बात कि ना एम्स का पेपर जो है ना ये हैरिसन ओरिएंटेड पेपर माना जाता है। इस बार का पेपर थोड़ा सा आसान या रिपीट ज़्यादा है परसेंटेज पहले के सालों के हिसाब से इस बार जो है एम्स का, लेकिन एम्स का जो एग्ज़ाम है ये हैरिसन ओरिएंटेड एग्ज़ाम माना जाता है कई सालों से। लेकिन जो अब नेशनल बोर्ड पेपर बना रहा है ऑल इंडिया का, जो कि AIPGME जिसे हम कह रहे हैं या पहले नीट कहते थे पिछले साल तक, वो पूरी तरह हैरिसन ओरिएंटेड नहीं माना जा सकता। इज दैट मेकिंग सेंस टू यू? तो जरूरी नहीं है कि आप एम्स का जो स्ट्रेटेजी था पहले, वो एम्स वाला स्ट्रेटेजी ऑल इंडिया पे भी फिट बैठता था क्योंकि दोनों ही एम्स एग्जाम कंडक्ट करता था। अब भी ऑल इंडिया जब से नेशनल बोर्ड के पास चला गया तो जरूरी नहीं है कि आपके लिए हैरिसन उतना काम करे जितना पहले करता था। तो ये एक थॉट में इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता था यहाँ पे बात करके भी कि जो एम्स के रैंकर आएंगे जब भी आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, मैं बात कराऊंगा, वो हैरिसन प्रिडोमिनेंट बात ही करेंगे क्योंकि एम्स में हैरिसन को पढ़ने से फायदा मिलता है रैंक लाने के अंदर। और ज्यादातर जो एम्स में रैंक लाते हैं उन्होंने अंडर ग्रेजुएट ईयर के अंदर हैरिसन को कुछ ना कुछ पढ़ा होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो ऑल इंडिया में रैंकर इस साल आएंगे या जो DNB में रैंकर आएंगे वो हैरिसन पढ़ेंगे। ये आपने देखना है फर्क, क्योंकि हैरिसन एम्स ओरिएंटेड किताब है। जरूरी नहीं है कि वही सेम टू सेम आपको नेशनल बोर्ड के एग्जाम्स में मिले। नेशनल बोर्ड अगर एग्जाम देता है तो वो ज्यादा फैक्चुअल, पार्क ओरिएंटेड, वैल्यू ओरिएंटेड अलग तरह से पेपर की वैल्यू आती है, जिसको हम आने वाली क्लासेस में और डिस्कस भी करेंगे आपके साथ। और आपकी कोई करी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप नए क्वेश्चन को कैसे टैकल कर रहे हैं? जैसे आप क्वेश्चन रिपीट तो होते नहीं हैं, तो पहले काफी परसेंटेज एग्जैक्ट तो सेम अमाउंट आता था, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं आता है। तो नए क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है? नए क्वेश्चंस के लिए ये जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं फॉर MCQ लाइक अक्रॉस पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स के लिए, फॉर शॉर्ट सब्जेक्ट्स आल्सो अक्रॉस, मेडिसिन के लिए AA। तो जो इम्पोर्टेंट उसमें थ्योरी पार्ट है वो आपने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो नया क्वेश्चन आएगा भी तो इट इज फ्रॉम दैट थ्योरी, सो यू नो बेसिक पता है, तो यू कैन गो फॉर दैट क्वेश्चन। जो नए क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा कि क्या क्वेश्चन है, तो उसका तो आंसर आल्सो यू विल नॉट नो, सो डोंट अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन। मतलब तुक्के मारने से इन क्वेश्चंस में कोई फायदा नहीं है। जो नया क्वेश्चन सबके लिए नया है, ये भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे लिए नहीं। अगर मुझे सब नए लग रहे हैं बाकियों को पुराने लग रहे हैं तो रैंक नहीं आएंगे। हाँ बेटा कुछ अच्छा, इसको ना उल्टा पूछ लेते हैं ना कि उससे पूछ रहे उसने क्या क्या किया था। रिव्यू गाइड, सब्जेक्ट गाइड के फुल कोर्स वाली, इनमें से कौन सी बेटर रहेगी? गाइड्स अक्रॉस सौम्या शुक्ला है फॉर फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स एंड फोरेंसिक, फिर माइक्रो के लिए रचना चौरसिया, पैथ AA, फार्मा गोविंद गर्ग, एंड शॉर्ट सब्जेक्ट्स एंड ऑर्थो के लिए अक्रॉस अगेन। हाँ, these I think they are of great use because you know what to read from each topic. मतलब ऐसा नहीं, हाँ? They are important. 10 years are very important. You have to read them. मतलब उसमें तो there is no compromise. Like 10 years are very very important. You have to know उसमें जो है, but see it depends. Like मेरे साथ क्या था that if I used to read 10 years, I could not recall. क्योंकि उसमें ये होता है एक क्वेश्चन CBS से है, एक CNS से है, तो इतना जल्दी माइंड नहीं वो सब कैप्चर कर पाता। दैट 1 minute you are reading CBS, 1 minute you are reading CNS। इसलिए फिर I read टॉपिक चैप्टर वाइज फ्रॉम AA and then did 10 years। मैं थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को क्वालिफाई कर देता हूँ आंसर को। यूजुअली क्या होता है ना, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। लाइन ड्रॉ मतलब कि इस महीने तक मैं सब्जेक्ट वाइज पढ़ूंगा, इस महीने के बाद मैं रिवीजन करता चलूंगा और मैं 10 इयर्स के ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा। यूजुअली ये स्ट्रेटजी वर्क करती है, क्योंकि अगर मैं पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ, अगर मेरे टारगेट इसका अगला ऑल इंडिया है तो समय ज्यादा है। मैं अभी से 10 ईयर के पेपर जिसमें मिक्स्ड है, तो कई लोग उसको नहीं समझ पाते कि अभी एक कार्डियो क्वेश्चन आ गया, न्यूरो का आ गया, जबकि क्लास न्यूरो की चल रही थी, क्लास माइक्रो की चल रही थी। तो क्लास के साथ पढ़ने में सब्जेक्ट वाइज किताबें आसान होती हैं, ठीक रहती है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ड्रॉ करना पड़ता है जिसके बाद वो छोड़ के 10 इयर्स करने पड़ते हैं, क्योंकि मिक्स्ड पेपर तो असली पेपर तो मिक्स्ड आना है।
तो मिक्स्ड की आदत डालनी पड़ती है। तो एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी अपने को शुरुआत, लेकिन सब्जेक्ट वाइज से करनी आसान होती है ना। अच्छा, टेक्स्ट बुक आखिरी साल में क्या काम करती है और शुरू में क्या पढ़ा था उसको तो एक हम शॉर्ट में देते हैं। आखिरी साल में कौन सी टेक्स्ट बुक्स को हमने पढ़ा, ये फायदा होगा। आखिरी साल में तो नो टेक्स्ट बुक्स एट ऑल, जस्ट हैरिसन से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रखे थे, ओनली दोज, अदरवाइज दूसरे कौन कौन से थे? एक्चुअली अगेन डिपेंड, जैसे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है पूरा, सो आई हैड रेड दैट। फिर कार्डियो में एक जो बॉक्सेस बने हैं उसमें वॉल्व डिजीजेस के वो, और अगेन फिर टेबल्स हैं एक ARF CRF की किडनी वाले चैप्टर में वो, और ऐसे पूरे इम्पोर्टेंट है, बस उसने बता दिया। अच्छा, और कोई क्वेरी आप लोग की, आप सोचते हो कुछ पूछना चाहते हो? मैं जो बताना चाहता हूँ फिर दोबारा से मैं एम्फसाइज करूंगा आपके सामने कि उसने आखिरी साल में कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आप आज जो बैठे हो, आप सोच रहे हो कि जो रैंक 1 लाया होगा वो कोई सुपरमैन होगा, उसने कुछ बहुत ही हाई फाई कुछ पढ़ रखा होगा, हमें पता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। एक ही सही कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ने में रैंक कोई भी ला सकता है। इस ऐसा नहीं है कि वो सुपरमैन है, ऐसा नहीं है कि वो हैरिसन को सारा रात दिन पढ़ रही थी, उसने टेक्स्ट बुक पढ़ी नहीं। अगर आप किताबों का नाम सुनते हो जो उसने नाम बोले, अमित आशीष, मुदित खन्ना, एक्रॉस, ये तो आप भी पढ़ रहे हो। पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? सही कह रहा हूँ कि नहीं? तो इसका मतलब रैंक लाना किसी के लिए भी नामुमकिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें हाई फाई किताबें पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि हमें रात को ऑन्कोलॉजी की टेक्स्ट बुक पढ़नी है जाके। ऐसा तो नहीं। वो किताब के पीछे रेफरेंस में लिखा होता है, क्वेश्चन के पीछे आंसर में रेफरेंस में लिखा होता है, वो असली में थोड़ी कोई पढ़ता है। तो इसको आपने डरना नहीं है। इट इज ऑल पॉसिबल टू डू। अगेन आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, रैंक 1 एम्स पॉसिबल है अगर आप ढंग से आने वाले समय को इस्तेमाल करते हो। 1 तक भी पॉसिबल। ये अगर आप सोचते हो कि नहीं यार ये तो कोई और ही लोग होते हैं जिनकी रैंक आती हो। सही कह रहा हूँ कि नहीं? एनी अदर क्वेरी यू हैव? आप पूछना चाहते हैं कुछ? लास्ट टाइम स्ट्रेटजी क्या रहती है? गुड क्वेश्चन है। उसने पूछा शुरुआत कैसे करनी है, ये कह रहे हैं आखिरी महीने में कैसे रिवाइज किया कि वो हाई यील्डिंग रहा। लास्ट मंथ में तो 10 years, बिकॉज वो एक कंबाइंड रिवीजन है। बिकॉज अगर या फिर आपने कोई वीक टॉपिक्स नोट कर रखे हैं, लाइक CNS मुझे थोड़ा सा वीक लगता था तो आई रिवाइज दैट। फिर क्लास नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लास्ट मिनट रिविजन बिकॉज दे हैव एवरीथिंग इन ब्रीफ एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स सब ब्रीफ में है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट लास्ट मंथ इज जस्ट फॉर क्लास नोट्स एंड 10 years, उसके बियॉन्ड तो कुछ भी नहीं। मेडिसिन और पैथोलॉजी कैसे रिवाइज? मेडिसिन एंड पैथ भी 10 years से, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं इन द लास्ट मंथ। एंड क्लास नोट्स तो ऑब्वियसली। मैंने एक चीज और ऐड करूंगा यहाँ पे, लास्ट मंथ में नई चीज नहीं खोलनी चाहिए। मतलब यूजुअली लोग गलती क्या करते हैं कि वो आगे बढ़ते जाते हैं, वापस नहीं आते। इज दैट मेकिंग सेंस? वो लास्ट मंथ में भी कोई अलग गाइड कोई बता देता है, कोई मतलब आज तक भी मुझे कई लोग फोन कर रहे हैं कि सर एक नई गाइड आ गई, मैंने पढ़नी, मेरे कल एग्जाम है। मैं कह रहा हूँ यार टाइम है तेरे पास, ये सब करने का क्या बात कर रहा है? सो प्लीज अंडरस्टैंड, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है रिवीजन के लिए। ये थोड़ी मुश्किल होती है ड्रॉ करने के लिए। हम कहते हैं कि ये मैंने लाइन खींच दी, आज से मैं रिवीजन शुरू कर रहा हूँ। जो लोग रिवाइज नहीं करते उनका रैंक नहीं आता। ये इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। जो क्योंकि पेपर में रैंक उनका, आप सोचो पेपर करने के समय आपको फीलिंग आई ये मुझे आता था, ये याद नहीं आता, ये मैं क्या करूँ, दो में कंफ्यूज हो गया, ये तो मुझे पता था, वो फिर हम पीछे हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो हाई फाई एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा जो लेटेस्ट एम्स में रिसर्च हुई है, वो ऐसा नहीं होता किसी को भी आता हो, है ना? ठीक है, रैंक 1 को भी नहीं आता, देखो तुम्हारे सामने जो उन्होंने लेटेस्ट कोई रिसर्च की होती है उस साल में, उस साल अगले साल सबको आ जाता है, अगले साल सबको आ जाता है, ट्रस्ट में ऑन दिस। उस साल में वो बात रैंक 1 को भी रेयरली होगा कि आती हुई। रैंक 1 लाना या टॉप रैंक लाने में जो बाकी सब सवाल है वो मैटर कर रहे होते हैं। वो 199 कैसे करना है, सिली मिस्टेक्स ना हो जाए। जो मुझे आता है वो मैं पेपर में रिप्रोड्यूस करता हूँ, जो मैंने पूरे साल पढ़ा वो सब मैं रिप्रोड्यूस करता हूँ। वो तब होगा जब मैं रिवाइज करूँगा। रिवाइज तब करूँगा जब लाइन ड्रॉ करूँगा। लोग लाइन नहीं ड्रॉ करते, आखिरी दिन तक वो कोई कुछ बता देता है कि ये रॉबिन्स में से पेपर है, उठा लेंगे। अब 2 साल में नहीं पढ़ी, 6 साल में नहीं पढ़ी, अभी एक दिन में कैसे करेगा? तो उसको स्ट्रेटेजी को इसी तरह बनाना है कि जो हम शुरू में पढ़ेंगे एक्सटेंसिव, आखिर में रिवीजन। दिस इज वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी, लेकिन ये अपने को फॉलो करनी है, लाइंस ड्रॉ करके रखनी है। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज खत्म, ये उसके बाद ये
I think we should, present her with a bouquet of flowers to. Any other query, or should we hand back to the teacher? Anything else you want to say? Ready? कोई डाउट, कोई आपका कोई और query? या लंच ब्रेक करते हैं आपका भी? Lunch break. Thank you very much. I think she deserves a big hand for coming. Thank you.